is an interview or any other events, so there is some hesitation issue. So the objective of this objective जाना नहीं है, ये पकड़ ले. सर your mic is mute. सर आपका mic mute है सर. Okay, fine. So objective of this workshop or such kind of event is to step by step remove your hesitation. Okay. तो इसी को माइंड में रखते हुए हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है. सो अब मैं हैंड ओवर करूंगा सर्किट मनिया टीम को कि अपने प्रोग्राम को वो स्टार्ट करें. Okay, sir. So I would like to just call Narendra. Narendra, please share the screen. आप तीनों में से कोई भी स्क्रीन शेयर कर सकता है बिकॉज आप तीनों होस्ट हैं. Okay, then so should I start now? Is I audible? Yes. Yes, sir. Okay, sir. Okay. So a very good evening to one and all, and I would like to thank to everyone for joining this workshop and coming between us. I hope at last you will learn from this workshop how mobile charger work, its principal working events is. So this is the first workshop organized by our club, as the sir already said, Circuit Mania Club, and the mentor of this club is Mr. Indresh Yadav sir, and he is also the assistant professor in electrical department also. So and so this club deals with the designing, construction, simulation, and applications of so many elements in electrical and electronics domain. So in this club, you will get a knowledge of doing work on softwares like MATLAB, PSIM, Multisim, Proteus, LT-Spice, and so many. And I think many of you had already joined the WhatsApp group after 2 or 3 days of this workshop. Me and the vice president of this club will take a interview for the post of council members and members. So I request you to be ready for that also. And now coming back to our topic or the overview of the workshop. So what you will learn from this and what you will learn from this workshop. So as you can see, here are some topics written on your screen. So that is what you will learn from this workshop. What is circuit designing, software used for designing circuits, what is mobile charger, types of mobile charger, components used in mobile chargers, and working of mobile chargers. So firstly, coming to our first topic, what is circuit designing? So as you can see that I'm गौरव आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. Using this word circuit designing. What does this mean? This word is already coming from its only. Is I audible now? Yeah, audible. Yes, sir. So I was taking this coming to our first topic. What is circuit designing? As it is clear from the words circuit designing, to design a circuit. Okay. So it is the physical form that an electronic circuit will take. As it is clear already, but it is a physical form that a circuit will take. Now you
all are thinking why to Not audible. गौरव आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. what is its important now you as you are seeing images on your screen. Hello, is I audible now? और अब Yes. वॉइस कट रही है बार बार बीच में. Is I audible now? Hello. Yes, अब you are. सही है. Okay. So as you are seeing the two images on. Okay, so if I ask you to just explain the second image of the second image, so will you be able to explain it clearly by seeing the just only seeing the image? No, sir. So this is the importance. And the first image as you are seeing, first image as you are seeing of circuit, and it is the same image of the second image. It is a diagram, systematic diagram of the second image. So if I asked you to just explain the second image, then you will easily explain it, because you will say that 220 volt AC supply is given and a diode is there, a rectifier is there. So this is clear from this diagram that this is the you can explain it. You just know the importance of the circuit designing. Okay. So now I would like to call Mr. Narendra, Master Narendra, to just explain you more further about the mobile charging. Okay, thank you, Gaurav. So I will start once again. Hello. हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो. Hello, is I audible? यस यस, आप दोनों की आवाज आ रही है. आप दोनों की आवाज आ रही है. स्टार्ट करें. One second, sir. नरेंद्र, आपका माइक म्यूट है. माइक को अनम्यूट करिए. हेलो, हेलो. हाँ नरेंद्र. यस सर, यस सर. आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही, अब आ रही है. स्टार्ट. Okay, sorry sir. Yes, Narendra, you are audible. Yes sir. Okay. Yes, you are audible now. Okay sir. Okay sir. Thank you, Gaurav. So I will start to force. मतलब हम आगे प्रोसीड करते हैं. What is a mobile charger? Basically, mobile charger is a device that provides electrical energy to a battery by forcing off current to it. All battery charges with DC current, but charger takes AC voltage in and gives DC voltage as output. So without battery, your mobile phone is no use. Mostly mobile phones are endowed by a lithium-ion battery. So next slide is once again. There is types of mobile charger. Basically, many types of mobile charger used in our life. USB charger, multi-port charger, car charger, wireless charger.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे यूएसबी चार्जर के बारे में। यूएसबी चार्जर, यूएसबी चार्जर a cable used to charge a smartphone। सब लोगों के पास में ज्यादातर मोबाइल फोन्स रहते हैं, सब लोगों के पास में। तो हम यूएसबी केबल के द्वारा ही मतलब अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं। यूएसबी जो यूएसबी केबल होती है, हम उससे पावर ट्रांसफर करने के लिए भी हम यूएसबी चार्जर को मतलब यूएसबी केबल को हम यूज करते हैं, और डाटा ट्रांसफर करने के लिए भी हम यूएसबी चार्जर को मतलब यूएसबी केबल को यूज करते हैं। वैसे आजकल यूएसबी केबल बहुत सारी तरह की आ रही हैं। मिनी यूएसबी आ रही है, माइक्रो यूएसबी, यूएसबी टाइप सी। एंड ट्रेडिशनली देखा जाए तो जो एक बार मैं इंटरप्ट करूंगा आपको। अपने जो पीपीटी है आपकी, उसको F5 प्रेस करिए या फिर उसको जो है फुल स्क्रीन कर लीजिए। यस, ओके, नाउ इट्स फाइन। ओके सर। तो यूएसबी पोर्ट के अंदर लगभग 4 पिन्स होती हैं, आप लोगों ने शायद देखा होगा। और पहले 5 पिन्स भी आती थी यूएसबी के अंदर। आजकल यूएसबी टाइप सी जो चार्जर आ रहे हैं बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इनका। और जो माइक्रो यूएसबी जो आ रहे हैं, इनका यूज पहले हम लोग मोबाइल फोन में यूज करते थे, उससे पहले हम मिनी यूएसबी यूज करते थे। अभी यूएसबी टाइप सी न्यू मॉडल मतलब न्यू टाइप में आया। उसके बाद उसके बाद में मल्टीपोर्ट चार्जर के बारे में हम लोग बात करते हैं। मल्टीपोर्ट चार्जर का यूज हम ज्यादातर लैपटॉप्स, टैबलेट्स वगैरह चार्ज करने में यूज करते हैं। USB chargers, multiple USB chargers are compact solution for your charging needs. A multi-port USB charger can be used to charge a variety of devices, for smartphone to tablet, music players, and everything in between. If you have a multiple mobile devices, ये सेम लगभग जितने भी चार्जर्स होते हैं लगभग उनकी वर्किंग सेम ही रहती है। उसके बाद में हम बात करते हैं कार चार्जर के बारे में। जो कार चार्जर होता है, a car charger is a device that convert 12 volt to 5 volt। बेसिकली कार चार्जर से हम अपने मतलब सेल फोन्स और MP3 प्लेयर्स वगैरह ये सब कुछ हम मतलब चार्ज कर सकते हैं, अपने छोटे छोटे जो डिवाइसेस होते हैं। और जो the cell phone will typically connected to the car charger through a USB port or simple power cord। Car chargers are typically not meant to be the sole method of charging, and one popular type works as a battery charger as well as an FM transmitter, and is a popular choice for MP3 players or phones that can play music। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट चार्जर है वो है वायरलेस चार्जर। 1 सेकेंड। Wireless charger works by transfer energy from charger to receiver in the back of the phone via electromagnetic inductions। बेसिकली वायरलेस जो चार्जर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो आप लोगों ने सबने पढ़ाई होगा लगभग सबने, क्योंकि इसमें मतलब मोटर जो है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करती है। और जो क्या बोलते हैं जनरेटर है वो भी इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह सब लोगों को पता होगा लगभग। तो वायरलेस इसमें जैसे पता लिखा हुआ है, निकोला टेस्ला डेमोन्स्ट्रेटेड मैग्नेटिक रेजोनेंट कपलिंग, the ability to transmit electricity through the air by creating a magnetic field between two circuits, a transmitter and receiver। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो ट्रांसमीटर होता है उसके पीछे ही हम अपने मोबाइल में जो रिसीवर लगा होता है उसमें मैग्नेटिक मतलब बोल सकते हैं कि कॉइल्स वगैरह लगी होती हैं, और उसके अंदर जो वायरलेस होता है उसके अंदर भी कॉइल्स वगैरह लगी होती हैं। तो उन दोनों पे हम मतलब लगा देते हैं, तो उससे हमारी पावर जो है वो ट्रांसमिट होती है, और जो हमारा मोबाइल है वो उस चीज़ को रिसीव करता है, तो उससे हमारा मोबाइल फ़ोन चार्ज हो जाता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 1 सेकेंड। कम
कंपोनेंट्स यूज्ड इन मोबाइल चार्जिंग। वैसे ज्यादातर लोगों को पता होगा कि कितने कंपोनेंट्स, किस टाइप के कंपोनेंट्स यूज होते हैं मोबाइल चार्जर के अंदर। जैसे ट्रांजिस्टर है, डायोड है, कैपेसिटर है, रजिस्टर है, ऑप्टो कपलर है, चैनल डायोड है, ट्रांसफार्मर है। ये सारी चीजें हम यूज करते हैं जो कि हमारे चार्जर के अडेप्टर के अंदर लगे होते हैं। और उसके बाद में हम एक एक करके सभी कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं। ट्रांजिस्टर, जो हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स और इलेक्ट्रिकल पावर को एम्पलीफाई करता है। और जो ट्रांजिस्टर है हम उसको एज अ स्विच की तरह वर्क, मतलब एज अ स्विच की तरह वर्क करता है। सिंपल वर्ड में हम बोल सकते हैं जो ट्रांजिस्टर इज अ मिनी डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल और रेगुलेट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। एंड उसके बाद में जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है डायोड। A diode is a two-terminal electronic component that conducts current primarily in one direction. ये जो डायोड होता है ये भी एक स्विच की तरह ही वर्क करता है, वन वे स्विच की तरह वर्क करता है डायोड। हम डायोड को वन सेकेंड, डायोड को मतलब हम यूज करते हैं क्योंकि डायोड जो है एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है और ये फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज बेस पे मतलब वर्क करता है। हम इसको फॉरवर्ड वाइज भी यूज कर सकते हैं और बैकवर्ड मतलब रिवर्स वाइज भी यूज कर सकते हैं। और मतलब हमें जो करंट जो पास कराना है किसी मतलब एक डायरेक्शन में तो हम इसको मतलब फॉरवर्ड वाइज की तरह यूज करेंगे। और अगर हमें करंट जो है ब्लॉकिंग टाइप में मतलब रिवर्स वाइज में यूज कराना है तो हम इसको रिवर्स टाइप में लगा करके उसको यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है कैपेसिटर। कैपेसिटर तो ज्यादातर आप लोग जानते होंगे कैपेसिटर का तो यूज, क्योंकि जो कैपेसिटर है कैपेसिटर को हम यूज करते हैं। कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटर आर यूज्ड एसी और डीसी। कैपेसिटर को हम एसी में भी और डीसी में भी यूज कर सकते हैं, दोनों में मतलब दोनों में यूज करते हैं। बेसिकली कैपेसिटर को हम कंडेंसर भी बोल सकते हैं, कंडेंसर, कंडेंसेटर, क्योंकि कंडेंसर को हम मोटर वगैरह में यूज करते हैं, इंडक्शन मोटर वगैरह में। क्योंकि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी मोटर स्टार्ट मतलब मोटर के वायर वगैरह लगा देते हैं, मोटर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमारी मोटर रन नहीं करती है क्योंकि अगर जैसे अगर उसमें कंडेंसर नहीं यूज करें तो, क्योंकि अगर कंडेंसर लगा देंगे तो वो उसके द्वारा उसको मोटर को टॉर्क मिल जाएगा और मोटर जो है वो रन करना स्टार्ट कर देगी। वैसे ही कैपेसिटर वगैरह को हम यहाँ पे भी छोटे छोटे सर्किट्स में यूज करते हैं। और मोबाइल चार्जर के अंदर जो कैपेसिटर को यूज करते हैं वो लगभग जो सबसे कम 10 नैनोफेराड और से लेकर के मतलब 3300 नैनोफेराड तक का मतलब कैपेसिटर यूज करते हैं। और जो हम जो कैपेसिटर यूज करते हैं मोबाइल चार्जिंग में वो होता है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर एंड एल्यूमिनियम टाइप कैपेसिटर होता है। ठीक है, ये कैपेसिटर है। उसके बाद में रजिस्टर। रजिस्टर तो सब लोगों को वैसे पता ही होगा, सब लोगों ने पढ़ा भी होगा रजिस्टर के बारे में, तो क्योंकि रजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, जो कि करंट का अपोज करती है। और रजिस्टर जो है टू रिड्यूस करंट फ्लो एंड हम रजिस्टर के द्वारा मतलब सिग्नल्स के लेवल को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और रजिस्टर जो है टू डिवाइड वोल्टेजेस, मतलब वोल्टेज को भी डिवाइड करता है। तो हम इसको हाई पावर रजिस्टर और फिक्स्ड रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर, बहुत तरह के रजिस्टर्स होते हैं। मैं आप लोगों को पावर सिमुलेटर में ये सारी चीजें बताऊंगा। और हाई पावर रजिस्टर्स जो होते हैं दैट कैन डेसिपेट मेनी वॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एज हीट may be used as part of motor controls in power distribution system. Fixed resistors have resistance that only change slightly with temperature, time or operating voltages. और जो वेरिएबल रजिस्टर्स होते हैं कैन बी यूज्ड टू एडजस्ट सर्किट एलिमेंट्स such as a volume control, lamp dimmer, or as sensing devices for heat, light, humidity, force और chemical activity। इन सब में हमारा रजिस्टर का यूज होता है, वेरिएबल रजिस्टर का यूज करते हैं। उसके बाद में आता है ऑप्टो कपलर। ऑप्टो कपलर भी ये एक डिवाइस होता है जिसका कि मतलब हम इसको ऑप्टो कपलर भी बोल सकते हैं
और ऑप्टो आइसोलेटर भी बोल सकते हैं, फोटो कपलर भी बोल सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है that transfer electrical signals between two isolated circuit by using light। तो जो ऑप्टो कपलर होता है वो सिग्नल्स को ट्रांसमिशन का काम करता है। ऑप्टो कपलर में एक एलईडी और एक ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। एलईडी तो आप लोगों को पता ही होगा, लाइट एमिटिंग वो जो डायोड होता है, और जो ट्रांजिस्टर जो हम यूज करते हैं वो फोटो ट्रांजिस्टर यूज करते हैं इसके अंदर, ऑटो कपलर के अंदर। इसके द्वारा हम बना सकते हैं और ऑटो कपलर इन दोनों मतलब एलईडी और इन दोनों को यूज करके, ठीक है। उसके बाद में मैं आप लोगों को बताता हूँ जो लाइट एमिटिंग के बेस पर एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होता है, और डिजिटल सिग्नल को हाई और लो सिग्नल को मतलब ट्रांसफर करने के लिए हम ऑटो कपलर का यूज करते हैं। एंड मेन वर्क इसका यही है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू लाइट फॉर्म एंड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे दैट इज ऑप्टो कपलर। नेक्स्ट इज अ जेनर डायोड। Zener diode. A Zener diode is a special type of diode designed reliably allow current to flow backwards when a certain set reverse voltage is known as a Zener diode is reached। ठीक है। उसके बाद में ट्रांसफॉर्मर तो आप लोगों को वैसे पता ही होगा ट्रांसफॉर्मर क्या करता है। हम स्टेप डाउन और स्टेप अप के बेस पर हम यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर को। और जो बेसिकली जो छोटे छोटे जो सर्किट्स होते हैं उनमें हम ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, वो 4 टाइप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। मोबाइल चार्जर में भी हम 4 टाइप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। एंड ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट इनपुट 220 वोल्ट टू अ वर्किंग आउटपुट वोल्टेज अराउंड 5 वोल्ट। ठीक है। हम जैसे एक क्वेश्चन वैसे बन सकता है इसमें से कि हम ट्रांसफॉर्मर को मतलब कि चार्जर के अंदर क्यों यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली हम ट्रांसफॉर्मर को इसके अंदर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमें इतना हाई वोल्टेज मिलता है 220 वोल्ट, और 220 वोल्ट को अगर हम डायरेक्ट अगर मोबाइल में लगाते हैं तो मोबाइल थोड़ी चल पाएगा, मोबाइल तो बेकार हो जाएगा, डैमेज भी हो जाएगा। इसलिए हम ट्रांसफॉर्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं जो कि इतनी हाई वोल्टेज को और उसमें लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके, और हमारे फिर उसके बाद रेक्टिफायर लगा करके एसी को डीसी में कन्वर्ट करके हमारे मोबाइल तक एनर्जी को मतलब पावर को ट्रांसफर करे, दैट इज अ ट्रांसफॉर्मर। एंड उसके बाद में मैं आप लोगों को पावर सिमुलेटर के बारे में बताता हूँ। पावर सिमुलेटर जो जितने भी सॉफ्टवेयर हमारे इसमें जो यूज हो रहे हैं, पावर सिमुलेटर है और मल्टी सिमुलेटर है, मैटलैब है और प्रोटियस है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं। और इस क्लब में भी ये सारे सॉफ्टवेयर यूज होंगे। अभी आज मैं आप लोगों को पावर सिमुलेटर के बारे में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के सामने। तो 1 सेकेंड। स्क्रीन शो रही है आप लोगों को? यस सर। सर ओके ओके, थैंक यू। So I am going to explain how to use power simulator software for electronic circuit design and simulation। तो हम मतलब सर्किट को डिजाइन करने के लिए, सिमुलेट करने के लिए, उसका ग्राफ चेक करने के लिए कि हम मतलब इसके अंदर डीसी पावर दे रहे हैं, एसी पावर दे रहे हैं, तो उसका ग्राफ किस टाइप का होगा, ठीक है, वो सारी चीजें चेक करने के लिए। और वैसे पावर सिमुलेटर का जो यूज होता है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी पावर कन्वर्टर्स हैं वो सारे सब कुछ हम डिजाइन करने के लिए हम पीसी पावर सिमुलेटर हम यूज करते हैं। और पावर सिमुलेटर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि और ये रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और ये इंडक्टर्स वगैरह हम क्यों यूज करते हैं, और जितने भी कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स के सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए, जब ही हम किसी सर्किट को डिजाइन कर पाएंगे। उसके बाद में हमें ओम्स लॉ के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट इज ओम्स लॉ। और उसके बाद केसीएल, केवीएल सबको आना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो 12th करके आए उन लोगों को भी शायद 12th करने के बाद जो बीटेक में जो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आया है
उन लोगों को भी, सब लोगों को पता होगा ओम्स लॉ के बारे में और केसीएल केवीएल के बारे में भी। नहीं तो वो सेकंड ईयर में नेटवर्क में पढ़ेंगे ये चीजें, केसीएल एंड केवीएल, ओम्स लॉ वगैरह सब पढ़ाएंगे। और जो लोग थर्ड ईयर में हैं थर्ड ईयर में आए हैं वो लोगों को तो शायद लोगों ने शायद पढ़ा होगा सबने। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि हम जैसे सर्किट को डिजाइन करते हैं ब्रेड बोर्ड पे, सपोज हम ब्रेड बोर्ड पे सर्किट को डिजाइन करते हैं, यहाँ पे पीसीबी वगैरह पे हम डिजाइन करते हैं, तो हमारे पास मतलब जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब कुछ हमने लगा दिए। अगर हमारा कोई भी कंपोनेंट अगर गलत भी लग गया तो हमारे हो सकता है कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारा पूरा सर्किट ही डैमेज हो जाता है। तो उसके लिए देखा जाए तो पहले हमें किसी पावर सिमुलेटर वगैरह पे ये सारी चीजें पहले डिजाइन करके देख लेनी चाहिए कि हमारा सर्किट जो है ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहाँ पे हमारी दिक्कत आ रही है। तो ये सारी चीजें पहले हमें देख लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें न तो कोई मतलब कंपोनेंट्स डैमेज होना है न कुछ होना है, क्योंकि अगर डैमेज मतलब कोई भी दिक्कत आएगी तो उसमें एरर दिखा देता है, इसमें यहाँ पे एरर है कि कोई भी दिक्कत है, वो सारी चीजें। तो मैं उसके बाद में बताता हूँ आप लोगों को। अच्छा, पावर सिमुलेटर का वैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पावर सिमुलेटर का ये आप लोगों को दिखा होगा कि एक्सक्यूज मी सर, सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। अभी दिखाई दे रही है? जी जी अब सही है। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पावर सिमुलेटर के बारे में। जितने भी जो मेन्यूज वगैरह हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स यूज हम कर सकते हैं और किस तरीके से हम सिमुलेशन करेंगे, और हम मतलब जितने भी एलिमेंट्स वगैरह के सबके बारे में हम देखेंगे इसमें। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेन्यू देखते हैं, फाइल मेन्यू, एडिट, व्यू। तो फाइल में न्यू में जाएंगे और उस पर क्लिक करेंगे, हमारी जो चार्ट है वो चार्ट बनकर आ जाएगा। उसके बाद में हम जैसे एमएस वर्ड में जो भी ऑप्शंस रहते हैं, ओपन है, सेव एज है, ये सब देखा होगा आप लोगों ने, उसमें पढ़ा होगा, मतलब एमएस वर्ड में देखा होगा, एमएस पावर पॉइंट वगैरह में देखा होगा ये सब। तो उसके बाद में मैं आप लोगों को बता देता हूँ एडिट में क्या होता है। एडिट में अंडू मतलब जो भी जैसे तुमने आप लोगों ने कोई भी सिंबल आपने लगा दिया और आप लोग उसको हटाना चाहते हो तुरंत, तो कंट्रोल जेड कर दो और वो हट जाएगा। उसके बाद में आता है ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड। कोई भी ऐसे कंपोनेंट है और उसको जैसे दूसरी जगह से मतलब लेकर के आना है तो उससे मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वहां से तुरंत उसको कॉपी टू क्लिपबोर्ड करो और उसको वहाँ पे पेस्ट कर दो, तुरंत वो भी हो जाएगा। उसके बाद में आता है प्लेस टेक्स्ट। प्लेस टेक्स्ट का मतलब तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे कोई रजिस्टर है तो रजिस्टर है, मतलब ये है क्या, रजिस्टर वगैरह है या इंडक्टर है, जो भी अब आप लोगों को नेम डालना है उसके ऊपर, ये इंडक्टर है ये कैपेसिटर है, तो उसके लिए हम प्लेस टेक्स्ट का यूज करेंगे। उसके बाद में आता है प्लेस वायर। प्लेस वायर से हम कहते हैं मतलब सर्किट कोई भी जैसे हमने कंपोनेंट्स लगा लिए, उसके बाद में हमें कंपोनेंट्स को मतलब कनेक्ट करना है, तो हम प्लेस वायर के थ्रू हम कंपोनेंट्स को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद में एस्केप के लिए एडिट लाइब्रेरी, ये सारी चीजें आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा। उसके बाद में एप्लीकेशन लुक, मतलब कि एप्लीकेशन लुक में ये है कि हम इस सॉफ्टवेयर को किस किस विंडोज वगैरह में यूज कर सकते हैं। विंडोज 200, ऑफिस एक्सपी, विंडोज एक्सपी, ऑफिस 2003, ये सारी पुरानी विंडो है, ऑफिस 2007। और स्टेटस बार, टूल बार, एलिमेंट का टूल बार, ये हमारा एलिमेंट का टूल बार है ये नीचे। और उसके बाद सिमुलेशन के मैसेज वगैरह वो सब यहाँ आते हैं। उसके बाद जूम इन करना है, जूम आउट करना है, जूम इन सेलेक्ट करना है, ये सारी चीजें। एलिमेंट्स की लिस्ट वगैरह में हमारे मतलब जो भी हमने सर्किट बनाया है तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स यूज हुए हैं, तो वो सब कुछ उसमें आ जाएगा। कितने एलिमेंट्स हमने यूज किए हैं वो काउंट होकर के आ जाएंगे पूरे। हमें कोई भी ऐसे सर्किट बनाया है तो उसके नोड का नेम सेट करना है, तो वो यहाँ से मतलब सेट नोड नेम में जाके इसको क्लिक करेंगे तो नोड का नेम सेट हो जाएगा। उसके बाद में आता है डिजाइन टू सब सर्किट्स, डिस्प्ले सब सर्किट्स के बाद में आता है एलिमेंट्स। ये मेन चीज है एलिमेंट्स। एक सेकेंड, मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है? यस सर। Yes, yes, you are audible. ओके ओके, थैंक यू सर। अब हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्स के बारे में।
एलिमेंट्स में पावर में आते हैं हमारे आरएलसी ब्रांचेस आती हैं, स्विचेस आते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स आते हैं, मैग्नेटिक एलिमेंट्स आते हैं, अदर में भी बहुत सारे आते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं सबसे पहले आरएलसी ब्रांचेस के अंदर। आरएलसी ब्रांचेस के अंदर जो आते हैं वो रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइट, आरएलसी, रियोस्टेट। मतलब हमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सबके सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए कि रजिस्टर का सिंबल कैसा होता है, इंडक्टर का सिंबल कैसा होता है। तो हम जैसे सेलेक्ट करके रजिस्टर हमें यूज करना है तो रजिस्टर हम वहां से क्लिक करेंगे और रजिस्टर स्क्रीन पे आके सेट कर देंगे। उसके बाद कपल्ड इंडक्टर क्या मतलब उसका सिंबल देख लेंगे, कपल्ड इंडक्टर है, नॉन लीनियर एलिमेंट है, ये सारी चीजें। उसके बाद आते हैं स्विचेस। तो डायोड भी हमारा एक स्विच होता है, मॉसफेट भी मतलब स्विच की तरह ही वर्क करते हैं। ये जितने भी ये एलिमेंट्स हैं ये सब एक स्विचेस की तरह वर्क करते हैं। और ये हमें जैसे सर्किट है, सर्किट में जो भी रिक्वायरमेंट है, जिस भी सर्किट की रिक्वायरमेंट है तो वो मॉसफेट है, पी मॉसफेट है, जो भी सर्किट की रिक्वायरमेंट है हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मर में हमें कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज करना है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर यूज करना है। आइडियल ट्रांसफॉर्मर इन्वर्टेड है, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर इन्वर्टेड है, सिंगल फेज 3 वायर ट्रांसफॉर्मर है, सिंगल फेज 4 वायर ट्रांसफॉर्मर है। ये थ्री सेकेंडरी वाला कोई ट्रांसफॉर्मर होता है, सैचुरेशन ट्रांसफॉर्मर, 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। हमें अगर स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर यूज करना हो कि हमें स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर यूज करना है 3 फेज में, ये सारे ट्रांसफॉर्मर्स आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स। मैग्नेटिक एलिमेंट्स में हमारे आते हैं वाइंडिंग्स हैं, लीकेज पाथ, एयर गैप, लीनियर कोर, सेचुरेबल कोर। ये सब आप लोगों ने देखा होगा। वाइंडिंग्स तो आप लोगों ने देखी होंगी, वाइंडिंग राउंड राउंड होती है, वो वाइंडिंग होती है। लीकेज पाथ आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मर में पढ़ा होगा। एयर गैप जो होता है मोटर में, मतलब स्टेटर की वाइंडिंग में और रोटर की वाइंडिंग के बीच में जो एयर गैप होता है, वो सारी चीजें। लीनियर कोर, सेचुरेबल कोर वगैरह ये सब आप लोगों ने देखी होंगी। उसके बाद अदर में आता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। जैसे हमें कोई सर्किट में ऑपरेशनल एम्पलीफायर का अगर यूज है कि हमें भाई ऑपरेशनल एम्पलीफायर यहाँ पे यूज करना है, तो हम यहाँ से ऑपरेशनल एम्पलीफायर सेलेक्ट करेंगे कि हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर ग्राउंड वाला यूज करना है कि ग्राउंड इन्वर्टेड दोनों का यूज करना है, लेवल बंद करना है। जो भी ऑप्टो कपलर है, मैंने अभी आप लोगों को ऑप्टो कपलर के बारे में बताया था। और डीबी अपॉन dt ये सब कुछ रिले, और रिले वन लो वन एनसी चेंज हुआ। और मोटर ड्राइव मॉड्यूल में ये सब आते हैं कि स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर है, स्क्वायर केज इंडक्शन मशीन न्यूट्रल है, वाउंड रोटर इंडक्शन मशीन है, डीसी मशीन है, और ब्रशलेस डीसी मशीन है। और जितने भी मशीन्स वगैरह हैं, जितने भी डीसी मशीन, ब्रशलेस डीसी मशीन, परमानेंट, मैग्नेट, ये सारी मशीन्स वगैरह आप लोगों को यहाँ पे जैसे सर्किट में, मतलब सर्किट डिजाइन करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी, जितने भी मतलब सिंबल्स की, जितने भी मशीन वगैरह के जो सिंबल्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी, वो सब कुछ सारे सिंबल्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक मॉड्यूलर मैकेनिकल लोड सेंसर्स वगैरह के बारे में। तो आप लोगों को पता भी होगा थोड़ा बहुत। गियर बॉक्स है, एब्सोल्यूट एनकोडर है, रिजॉल्वर है, स्पीड सेंसर है, टॉर्क सेंसर है, मतलब टॉर्क को सेंस करने के लिए हम टॉर्क सेंसर यूज करते हैं, स्पीड को मतलब सेंस करने के लिए हम स्पीड सेंसर यूज करते हैं। उसके बाद में आता है थर्मल मॉड्यूल। थर्मल मॉड्यूल में डायोड है, मॉसफेट आयोन है, और आईजीबीटी है, ड्यूल आईजीबीटी डायोड है। जो भी हमें रिक्वायरमेंट है, जिस सिंबल्स की हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें सर्किट बनाना है, तो हमें किस सिंबल की रिक्वायरमेंट होगी, वो सब कुछ जितने भी सिंबल्स हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी मॉड्यूल के अंदर ये सब आते हैं। सोलर मॉड्यूल, फिजिकल मॉड्यूल, सोलर मॉड्यूल फंक्शनल मॉडल, विंड टर्बाइन, लिथियम आयन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी सेल टाइप में, बैटरी लुकअप टेबल, एसओसी, अल्ट्रा कैपेसिटर, ये सारे कंपोनेंट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। उसके बाद में कंट्रोल में आप लोगों को मिलेंगे फिल्टर्स हैं। फिल्टर्स तो वैसे में पढ़ाया जाता है नेटवर्क में, और सेकंड ऑर्डर लो पास फिल्टर, सेकंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर, ये सारे आप लोगों ने, कुछ लोगों ने पढ़े भी होंगे, कुछ लोगों ने नहीं भी पढ़े होंगे। तो आगे सेकंड ईयर में, जो लोग सेकंड ईयर में आए हैं वो लोग आगे पढ़ेंगे फिल्टर्स वगैरह के बारे में। और कंप्यूटेशनल ब्लॉक्स हैं। कंप्यूटेशनल ब्लॉक्स में मल्टीप्लायर आता है, डिवाइडर आता है, और टेंजेंट आता है, कोसाइन आता है, साइन है, मतलब जो भी जितने भी सिंबल्स हैं इनके, वो सब लोग आप लोग चेक कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि पावर सिमुलेटर कैसे डाउनलोड करना है आप लोगों को। और उस पर जैसे हम लोग आगे की वर्कशॉप में इस पर पावर सिमुलेटर पे जैसे जैसे वर्क करेंगे,
तो आप लोग भी साथ ही साथ में, जो लोग साथ ही साथ में करना चाहें वो साथ ही साथ में सर्किट को डिजाइन करें, और जो लोग मतलब उनको समझ में आ जाए वो बाद में सर्किट को डिजाइन करके चेक कर सकते हैं कि हमें मतलब सर्किट ये डिजाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अदर फंक्शन ब्लॉक्स में आप आता है सैंपल एंड होल्ड, एफएफटी, एस डोमेन ट्रांसफर फंक्शन, ये कंट्रोल सिस्टम में पढ़ाया जाता है। एस डोमेन ट्रांसफर फंक्शन, इनिशियल वैल्यू, टाइम डिले, राउंड ऑफ, मल्टीप्लायर, ये सारी चीजें। उसके बाद आती हैं उसके बाद आते हैं लॉजिक एलिमेंट्स। लॉजिक एलिमेंट्स जितने भी गेट वगैरह हम यूज करते हैं, एंड गेट, और गेट, ये सारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाए जाते हैं। और गेट है, एक्सओआर गेट है, सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप है, ये सब पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाया जाता है। तो आप लोग जो कुछ लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा, तो वो लोग आगे पढ़ लेंगे। वैसे बेसिकली आइडिया तो होगा थोड़ा बहुत सब लोगों को कि एंड गेट क्या होता है, नॉर गेट क्या होता है, थोड़ा बहुत। तो जैसे जैसे हम जैसे सर्किट को डिजाइन करेंगे तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, जो भी उसमें सिंबल यूज हो रहा होगा वो सारी चीजें। उसके बाद में आता है सिम कपलर मॉड्यूल है, डिजिटल कंट्रोल मॉड्यूल है, और मॉड कपलर मॉड्यूल्स है, पीआईएल मॉड्यूल है, डिजाइन सूट ब्लॉक्स है, प्रोपोर्शनल पीआई इंटीग्रेटर, एक्सटर्नल रिसेटेबल इंटीग्रेटर, सिंगल पोल कंट्रोलर, टाइप 3 कंट्रोलर, डिफरेंशिएटर, कंपैरेटर भी, ये भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाया जाता है। हिस्टैरिसीस कंपैरेटर, लिमिटर, अपर लिमिटर, ये सारी चीजें रहती हैं इसमें, कंट्रोल के अंदर आते हैं। उसके बाद में आता है अदर में क्या रहते हैं, स्विच के कंट्रोलर्स, कंट्रोलर्स ऑन ऑफ कंट्रोलर, मल्टी लेवल में अल्फा कंट्रोलर, एंड पीडब्ल्यूएम पैटर्न कंट्रोलर। सेंसर्स में आते हैं वोल्टेज सेंसर्स हैं, करंट सेंसर्स हैं, ये सब आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगे। प्रोब्स में वोल्टेज प्रोब, जैसे आप लोगों को यूज करना है कि हमें इनपुट में वोल्टेज प्रोब लगाना है कि हमारे हमने इनपुट कितने वोल्टेज दिया है, और हमें मतलब कितना करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है किसी सर्किट के अंदर, तो हम करंट प्रोब यूज करेंगे। वोल्टेज प्रोब हम यूज करेंगे जैसे क्योंकि हम वोल्ट मीटर को यूज करते हैं पैरेलल में, ठीक है। तो वोल्टेज प्रोब यूज करेंगे, नोड टू नोड को मतलब कनेक्ट करेंगे। डीसी वोल्ट मीटर है, एसी वोल्ट मीटर है, ये सारी चीजें उसमें लगाएंगे। उसके बाद में जैसे हमें ग्राफ मिलेगा, तो ग्राफ के उसी में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब सर्किट डिजाइन करूंगा उसके बाद, ठीक है। VAR मीटर इसमें यूज होगा, और 3 फेस VAR मीटर, जो जितने भी कंपोनेंट्स की आप लोगों को जरूरत होगी वो सारे कंपोनेंट्स आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है फंक्शनल ब्लॉक्स। फंक्शनल ब्लॉक्स में ये मैच फंक्शंस हैं, मैच फंक्शन टू इनपुट है, इनवर्स पार्क ट्रांसफॉर्मेशन है, क्लार्क ट्रांसफॉर्मेशन है। ये शायद किसी मतलब बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, शायद ही किसी ने पढ़ा होगा, मैंने तो अभी शायद नहीं पढ़ाया। आईसी मॉडल्स के बारे में तो लगभग 5 टाइमर है, ये यूज होता है बहुत सारे सर्किट्स में। PWM आईसी है, ड्राइवर आईसी है, ये भी यूज होती है। कंट्रोल टू पावर इंटरफेस, इनिशियल वैल्यू फाइंड करनी हो, पैरामीटर फाइल, एसी स्वीप मल्टी साइन में, पैरामीटर स्वीप, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। उसके बाद आता है सोर्सेज में वोल्टेज है, वोल्टेज के अंदर डीसी का सोर्स कैसा होता है, डीसी बैटरी का सोर्स किस टाइप का होता है, मतलब किस टाइप का सिंबल होता है इसका, वो सब लोग आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में 3 फेज साइन, ट्राइंगुलर, सॉ टूथ, स्क्वायर, स्टेप टू लेवल, पीस वाइज लीनियर एंड पेयर, वोल्टेज कंट्रोल्ड, current control flowing through, voltage gain, voltage control, non-linear multiplication, non-linear division, non-linear square root, round DC circle, round DC, random power, math function, मतलब बहुत सारे इसमें वोल्टेजेस के सोर्सेज हैं वो दे रखे हैं। उसके बाद में आते हैं करंट के सोर्सेज के, डीसी करंट का सोर्स कैसा होता है, साइन का कैसा होता है, ट्राइंगुलर का कैसा होता है, स्क्वायर का कैसा होता है, स्टेप टू लेवल का, पीस लीनियर का, वो सारे इसमें मिल जाएंगे। वेरिएबल गेन, वोल्टेज कंट्रोल का, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट है, टाइम है, ग्राउंड है, ग्राउंड हमें मतलब ग्राउंड का सिंबल शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, ग्राउंड 1 है, ग्राउंड 2 है, ठीक है। उसके बाद में स्पाइस के लिए मैं आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर होता है पी स्पाइस, वो हम आगे की जो नेक्स्ट वर्कशॉप होगी उसमें या तो पी स्पाइस नहीं तो फिर हम मल्टी सिमुलेटर, इन दोनों में से कोई भी एक सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे। और के बाद में सिंबल्स में आप लोग देख लो, इसमें एरो वगैरह ये सारे सिंबल्स मिल जाएंगे, इवेंट कंट्रोलर भी है, सिम कोडर है, ठीक है। उसके बाद आता है सिमुलेट।
जैसे हमारा कोई भी सर्किट है वो डिजाइन हो गया, सर्किट को डिजाइन होने के बाद में हम सिमुलेशन कंट्रोल पर क्लिक करेंगे। सिमुलेशन कंट्रोल करने के बाद में हम देखेंगे इसमें कि हमारा सर्किट जो है मतलब वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर उसमें कोई भी एरर आ रहा होगा तो वो रन सिमुलेशन होने से पहले हमें सिमुलेशन कंट्रोल करेंगे, जब भी हमें हमें मतलब पता चल जाएगा। और सिमुलेशन कंट्रोल से हमारा ये है कि हमें टाइम सेट करना है इसमें कि हमें जो भी आउटपुट चाहिए वो 1 सेकंड में आउटपुट चाहिए कि 2 सेकंड में आउटपुट चाहिए, वो सब इसमें सिमुलेशन कंट्रोल में होता है। इसके बाद में ये सब ठीक होने के बाद फिर रन सिमुलेशन में जाएंगे, रन सिमुलेशन करेंगे और उसमें जैसे भी कोई भी एरर होगा वो भी फाइंड हो जाएगा रन सिमुलेशन से भी। और जैसे हमारा जैसे रन सिमुलेशन हमारा रन हो गया, उसके बाद में हम रन सिम व्यू हम उस पर देखेंगे कि हमारा ग्राफ किस तरीके से प्लॉट हो रहा है। और रन टाइम ग्राफ या आप लोग देख रहे होंगे नीचे रन टाइम ग्राफ है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को जो भी ग्राफ है वो जो भी मतलब सर्किट जो है वर्किंग पोजीशन पर है तो उस टाइम का जो ग्राफ होगा वो आप लोगों को शो जाएगा। उसके बाद में आप लोगों को मैं बता देता हूँ ये वायर का होता है। जैसे हमें कोई भी रजिस्टर वगैरह लगा रहे हैं तो उसमें वायर यहाँ से हम लोग कनेक्ट करेंगे। उसके बाद में ये पेन ये सेलेक्ट करने के लिए, ये जूम इन करने के लिए, जूम आउट करने के लिए ये रन मतलब सिमुलेशन को रन कराने के लिए ये इसका सिंबल है। और ये जो है ये रन सिम्यू ये भी मतलब उसका जो सिम्यू हम लोगों ने अभी देखा था कि ग्राफ जैसे प्लॉट होगा जैसे देखेंगे। अच्छा, उसके बाद में अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी एक सर्किट डिजाइन करके देखते हैं कि हम कैसे सर्किट डिजाइन करेंगे। 1 सेकेंड। ओके, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? Yes, you are audible. ओके ओके, थैंक यू सर। अच्छा ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि हम कोई भी एक सिंपल सर्किट डिजाइन करके देखते हैं। ठीक है, जो कि नाउ आवर डिजाइन सिंपल डायोड रेक्टिफायर का सर्किट हम डिजाइन करेंगे, जो कि हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर होगा, जो कि उसमें सिंपल एक डायोड यूज होगा। वो सब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे सपोज ये हमारा साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स है, तो हम इसको लेकर के यहाँ पे जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक किया तो ये हमारी विंडो पे क्लिक हो जाएगा। उसके बाद में हमें इसके लिए एक डायोड की भी मतलब जरूरत है। तो हम डायोड है, अगर हमें जैसे इसको फॉरवर्ड वायर में यूज करना हो तो हमें इस तरीके से राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक से हम इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एलिमेंट हो, रेजिस्टेंस हो, इंडक्टर हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसके उसके मतलब डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम राइट क्लिक से उसके डायरेक्शन को चेंज करेंगे। ठीक है, अभी हम इस तरीके से यूज कर रहे हैं इसका। ठीक है, और जैसे हमें ये है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद में इसमें डबल क्लिक करेंगे। सॉरी 1 सेकेंड। तो डबल क्लिक करने के बाद में हम इसमें हमें कितने वोल्टेज देने हैं और कितना मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी रखनी है, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी कंपोनेंट्स वगैरह यूज होते हैं उसमें 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ही रहती है। जितने भी सर्किट्स हैं, जितने भी मशीन वगैरह हैं, जितने भी हैं, हमारे यहाँ सब 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर ही वर्क करते हैं। ठीक है, अगर कोई भी अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, अगर 60 हर्ट्ज की अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जितने भी कंपोनेंट्स, जितने भी मशीन वगैरह है, सारे सब कुछ डैमेज हो जाएंगे अगर हमें 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ पे मिलने लग जाए। ठीक है, और इसमें अभी हम देखते हैं, इसमें टाइप कर देते हैं 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी एंड इसमें हम देखते हैं कि 50 वोल्ट हमने इसमें दे दिया और इसको शो कराना है कि ये हमारा V1 है एंड ये पीक एम्पलीट्यूड इसका 50 है और ये फ्रीक्वेंसी हमारी 50 है। डिस्कनेक्ट। हेलो, आवाज नहीं आ रही? Yes, sir, you are audible.
स्क्रीन विजिबल है नहीं है? Sir, screen is also visible. ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, उसके बाद में हमने इसमें सेट कर दिया कि हमें इतने 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, इसका ना मतलब ये जो सोर्स लगाया है ये V1 है, ये 50 हमने वोल्टेज दिया है इसमें 50। उसके बाद में ये डायोड यूज किया है। उसके बाद में हम एक रेजिस्टेंस यूज करेंगे और रेजिस्टेंस को हम राइट क्लिक से इस तरीके से यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक है, ये सेट हो गया। और अब हम लोग क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें चेंज करनी है कि हमें कितने ओम का रेजिस्टर इसमें यूज करना है। ठीक है, हमें जैसे 40 ओम का यूज करेंगे हम इसमें, 40 ओम का जैसे हमें रेजिस्टेंस यूज करना है। और ये हमें इसका नाम रखना है, मतलब तो मतलब R1 से दिखाना है हमें, मतलब ये हमारा जो रेजिस्टेंस है ये R1 है। ठीक है, ये हमने दिखा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वायर के थ्रू इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, वायर के थ्रू हम इसको कनेक्ट करेंगे। जैसे हमारा ये एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट से कनेक्ट हो जाएगा तो हमारा जो वायर होगा वो रेड हो जाएगा। और इसको हम कनेक्ट करते हैं, इससे हमने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हम इसको कनेक्ट करते हैं, ये कनेक्ट हो गया। उसके बाद अब हम देखेंगे इसमें हमें अमीटर लगाना है, वोल्ट मीटर लगाना है। और वोल्ट मीटर यूज करने के लिए हम पावर पर जाएंगे, स्विच अदर में अदर प्रोब्स में जाएंगे तो प्रोब से हम वोल्टेज प्रोब लेंगे नोड टू नोड। तो हम इसको नोड टू नोड लगाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, क्लिक करके लगा दिया। और हम इसको वायर के थ्रू इस सर्किट से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, हमने ये वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। और 1 सेकेंड, इस प्रोसेस छोटा रह गया। तो ठीक है, मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ वोल्ट मीटर। इधर से प्रोब्स एंड वोल्टेज प्रोब नोड टू नोड। ठीक है, डबल क्लिक एंड सेट दिस। ठीक है, अब इसको हम वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हमें मतलब कितनी वोल्टेज दे रहे हैं, मतलब उस बेस पे मतलब एक वो वोल्टेज वोल्टेज प्रोब भी यूज करेंगे इसमें। ठीक है, और वोल्टेज प्रोब क्या है, मतलब इसको हम इसका नाम रख देते हैं V1 इज V1। ठीक है, ये हमारा V1 हो गया। उसके बाद अब हम इसमें अमीटर भी यूज करेंगे, अमीटर भी करंट मेजर करने के लिए। Go to probes and connect SMT. Sorry. One second. DC voltmeter, DC. One second. And pro voltage pro DC voltmeter DC. ओके, हम ये करंट प्रोब यहाँ पे यूज करेंगे और एक यहाँ यूज करेंगे अमीटर। हम जैसे कोई भी सर्किट बनाते हैं तो हम हर सर्किट में हमें ग्राउंड टर्मिनल जरूर देना चाहिए। ठीक है, हम इसमें ग्राउंड टर्मिनल भी देंगे, लगाएंगे इसमें। ये हमारा ग्राउंड टर्मिनल है। ठीक है,
और अगर आप लोगों को यहाँ पे सेट करना है कि भाई ये अमीटर है, ये अमीटर है, वैसे सब लोगों को पता होगा ये अमीटर है, ये डायोड है, हमने इसका डायोड यूज किया है, ये रेजिस्टेंस है, ये वोल्ट मीटर है, ये सारी चीजें आप लोगों को जैसे पता होगी। हम अब हम लोग इसका सिमुलेशन करते हैं, सिमुलेशन कंट्रोल, और इसका टाइम सेट करेंगे, हमें कितने टाइम टोटल टाइम इसका रखना है रन करने के लिए। हमने इसका टाइम सेट किया 1 सेकेंड, या फिर हम 2 सेकेंड कर देते हैं, 2 सेकेंड। और उसके बाद में सिमुलेशन रन सिमुलेशन। ओके, हमारा जो सिमुलेशन है वो रन हो गया है। उसके बाद में जो व्यू है, हमें क्या क्या चेक करना है इसके अंदर। I2 चेक करना है, V1 चेक करना है, I1 चेक करना है, VP2 चेक करना है। तो हम I1 और हम V1 दोनों चेक करेंगे कि हमने मतलब करंट और I1 और V1, ठीक है। और यहाँ पे ओके कर देंगे तो हमारा यहाँ पे ग्राफ बन के आ जाएगा, ठीक है। 1 सेकेंड। अब इसके बाद में हम लोगों ने देखा इसमें कि V1, ये हमारे V1 की ये साइनसोइडल वेव है, ये आप लोग देख रहे होंगे। और अगर इसमें हम मेजर करें कि मैक्सिमम, मिनिमम, नेक्स्ट मैक्सिमम, नेक्स्ट मिनिमम, और एनालाइज करना हो कि हमें हमारी एवरेज वैल्यू, पावर फैक्टर, रियल पावर, एपरेंट पावर, ठीक है। और ग्राफ जो है, कस्टम फॉर्मूला उसका, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे पावर फैक्टर हमें फाइंड करना है तो उसका पावर फैक्टर कितना है, 0.707, ठीक है। I1 वर्सेस V1 का जो पावर फैक्टर है वो हमारा 0.707 है। ये सब कुछ आपको यहाँ पे एनालाइज हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम रियल पावर देखें तो रियल पावर आप लोगों को, रियल पावर में भी पता चलेगा कि हमारी जो रियल पावर है वो कितनी है, ठीक है। उसके बाद में एनालाइज करना है कि हमारी आरएमएस आपको यहाँ से फाइंड हो जाएगा, ठीक है। हमारा आरएमएस भी एनालाइज हो गया। उसके बाद में ग्राफ के अंदर अगर आप लोगों को कोई एडिट करना है तो यहाँ से थोड़ी सी कोडिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद में एडिट होगा। तो वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। और इसमें और कुछ एनालाइज करने के लिए जो भी रह गया वो DHT जो भी एनालाइज करना है, ये सारी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। तो आज की वर्कशॉप के अंदर हम लोगों ने पावर सिमुलेटर के बारे में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब देखे। हमारा ग्राफ कैसा रहा है, हमने जैसे ग्राफ किया था वो कैसा है, और ये उसका I1 का, ये V1 का ग्राफ जो। और उसके बाद में हम एक बार चेक कर लेते हैं दूसरे जो एलिमेंट्स थे हमारे, जो I2 एंड V2 जो थे उनके एलिमेंट्स। ग्राफ आपका विजिबल नहीं हो रहा है। तो ग्राफ विजुअल नहीं है, ग्राफ विजिबल नहीं, ग्राफ मैं चेक करता हूँ। ग्राफ को आपको शेयर करना पड़ेगा फिर से 1 by 1 करके। ओके सर, ओके सर। ग्राफ अभी विजुअल है? यस, नाउ इट इज विजिबल। ओके ओके, थैंक यू सर। ये हमारा ग्राफ है I1 एंड V1। इसमें जो भी हमें फाइंड करना है, जो भी देखना है, ठीक है। I1 और V1 हमारी साइनसोइडल वेव थी, वो सब कुछ हमें पता चलेगा इसमें I1 V1 का। और ये मेजर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, और ये पावर फैक्टर फाइंड करना है। तो पावर फैक्टर की जो वैल्यू है इसमें, सर ये पावर फैक्टर की वैल्यू आप लोगों को दिखाई दे रही है? यस सर। ओके ओके, ये पावर फैक्टर की वैल्यू है। और इसमें अगर एनालाइज करना हो आरएमएस, तो आरएमएस भी यहाँ से हम एनालाइज कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर हमें रियल पावर जो है वो भी एनालाइज कर सकते हैं, I1 वर्सेस V1 15.62 हमारी ये रियल पावर है। और इस टाइम के साथ है टाइम फ्रॉम 10 पॉइंट माइक्रो से 60, ठीक है। उसके बाद में हम जैसे एपरेंट पावर देखना हो तो एपरेंट पावर, ये हमारी एपरेंट पावर आ गई। अब हम आगे देखते हैं कि जो नेक्स्ट ग्राफ जो रहेगा, नेक्स्ट ग्राफ जो I2 और जो V2 का है वो हम लोग अभी चेक करते हैं, ठीक है। वन सेकेंड। अब हम सिमुलेशन को रन कराते हैं। सिमुलेशन हमने रन कराया।
ठीक है। और अभी हमें दूसरा ग्राफ ये अभी दिखाई दे रहा है आप सभी लोगों को? अभी करेंटली आपका सिमुलेशन रनिंग का दिखा रहा है, और जैसे ही आपका ग्राफ ओपन होकर नए विंडो में ओपन होगा ना, तो आपको दोबारा शेयर करना पड़ेगा। इसको स्टॉप शेयरिंग करके तो ग्राफ को स्विच करना होगा। ओके सर, ओके सर, ओके। अभी हम VP2 और I2 इन दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब इन दोनों का ग्राफ चेक करेंगे। और ग्राफ अभी आप लोगों को शेयर नहीं हो रहा होगा, मैं भी आप लोगों को शेयर करा देता हूँ। अब आप लोगों को शेयर हो रहा होगा ग्राफ? यस, नाउ इट इज विजिबल। यस सर, यस सर। ये हमारा I2 और VP2 इन दोनों का ग्राफ है। इसमें हम इन दोनों में चेक कर सकते हैं कि हमारा अब इसमें पावर फैक्टर कितना है। I2 और VP2 का जो पावर फैक्टर है वो 1.0 है। और हमें एनालाइज करना है कि हमारी एवरेज एंड रियल पावर, एफरेंट पावर, और इसमें कोई भी ग्राफ में अगर यूजर फंक्शन यूज करने हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को रियल पावर भी एक बार दिखाया, तो ये हमारी I2 वर्सेस VP2 की जो रियल पावर है वो 15.6249, ठीक है। और उसके बाद में एफरेंट पावर, ये एफरेंट पावर थी रियल पावर, ठीक है, ओके। तो उसके बाद में आगे का जो नेक्स्ट वर्कशॉप होगी, मैं आप लोगों को जो कोई भी एक नया सर्किट ला करके और उसको ड्रॉ करके दिखाऊंगा जो नेक्स्ट वर्कशॉप में। और हम नेक्स्ट वर्कशॉप में मल्टी सिमुलेटर या फिर PSpice के बारे में भी आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा सॉफ्टवेयर को। और मैं आप लोगों को आज जो ग्रुप है, ग्रुप पे पावर सिमुलेटर कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आप लोगों को मैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है, वो आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। और आगे जो भी आगे एक्सप्लेन करने के लिए मैं गौरव सारस्वत को इन्वाइट करूंगा। गौरव सारस्वत, हेलो हेलो। हाँ, आगे स्टार्ट करिए। Is I am audible? या ऑडिबल, Hello. या ऑडिबल। Okay. Thank you, Narendra, for just sharing such a useful data with us. I hope many of them just know the importance of circuit designing. So by using such types of software, you just design a circuit and get and just see the output, and then you can analyze that the circuit is correct or is it working properly or not. So I request to just share a slide of working of mobile charging, Narendra. Narendra, hello. या वेट 1 second, वेट प्लीज। Okay. As Narendra already told you that explain you about the different types of chargers. So mostly the new type of charger is there in the market, that is wireless. Wireless charger is mainly work on the principle of electromagnetic induction. I think you all know about the electromagnetic induction. So what in that a coil of wire is there in the plate. That is a I think just call a transmitter, just like a transmitter. There is a coil of wires in the plate, so it creates a magnetic fluid. Okay, so this field induces a electric current in the adjacent coil, which is inside your mobile, without even touching it. So this is the electromagnetic induction principle used in the wireless charging. And many and now we are most of them we are using USB charger. So what it is? So
We all know that firstly a charger, what charger does, charger used to just convert the AC signal directly into the DC signal, because our battery which is used in the mobile usually support a DC current, so we can't give a 220 volt AC directly to it. So if directly we will give it, then it will burn or burst. Okay, so in this charger, the USB type charger, firstly we directly does not convert the AC signal into DC signal. First, what we did, first we convert AC to DC, then again DC to AC, then again AC to DC. So now you all are thinking that why we are doing so. So I think you all saw the ratings of chargers, which is always written on your charger when you just go to buy it. So many of the chargers input just like AC 220 volt and 50 hertz, and the output is written as DC 5 volts and 2 ampere, 1 ampere, 1.5 ampere. So now why AC, DC and DC to AC and again AC to DC? This is because both AC and 50 hertz frequency, and if we are directly just converting AC to DC, then we need a big transformer. Just convert directly AC 220 volt to a 5 volt DC. So we need a big transformer, big transistor to work. So, and we cannot put that much big size of transformer and transistor diodes in the small charger. So that's why first we convert a 50 hertz frequency of 220 volts to 50 kilohertz, and then we convert a AC, and then we again convert a AC convert into DC. So this process involves. Narendra, please share the next slide. So this process involves 4 steps. So firstly, what we are doing? Firstly, we are converting it. That we are rectifying it. What rectifying means? So we are using a 4 diode. We are using a 4 diode that is of 1N400. So what is the specification of 1N400 diode? So we use this only because it is a type of a rectifier diode. It is basically designed to just convert a AC signal into DC signal. Okay, so and again we are just after converting AC signal to DC signal, we just need a this what rectifier does. Rectifier just convert a AC to DC, but it does not convert that AC to uh, actual DC. It just converts the AC to pulsating DC. Now we have to just filtering it. So a capacitor is used for filtering it. So the combination of these two, just first we convert the AC to DC, and then again we just use a capacitor to filter it. Okay, so Narendra, I request you to just share the that second or third slide in which the diagram of mobile circuit diagram for mobile charger was there. No, that yeah, this one. This is the actual circuit diagram of a mobile charger, and in the second image you can see that this is the actual image of a charger which is inside that small box. Okay, so as you can see here that we are giving a 220 volt AC supply, and here you can see the resistor is there. So it's but you are thinking that the resistance decreases the current. So it is not that type of resistor. It is a resistor that it is a fusible type resistor which prevents damage. It does not just oppose the current. Okay, it prevents from damage. And after that, we use the diode 1N4007, that is specified diode, and just made a rectifier of it. And so what it is doing, I already told you that it just converts the AC signal to pulsating DC, and after that 450 volt of 450 volt and 2.2 megafarad of microfarad of capacitor is used, which just filtered the pulsating DC into a completely DC, and after that goes to the uh,
that is written, that goes to the another winding, another side, in which it just goes, that DC current just goes to the one side, it goes to the transformer side, and another goes to 2 micro ohm resistor. Okay, so now what's happened? So after this, a DC, after this DC goes through resistor and reach at the base of transistor, that is of T13008. So now another question is here, that why we are using this specific transistor. So here we use this because it is used for switching action. As Narendra already told you why transistor is used. So this transistor is used as a switching action. So what happened after this? Then this transistor just after receiving a current, then after receiving a current, that not fully current is coming to this transistor, because half of the DC current just goes to the transformer and another half is just going into the base of this transistor. So there is a low current, not fully current. The low current passes through the primary, one of the primary side, and low current is already also passing through the transistor. So when the circuit is complete, then the transformer induces the voltage in the auxiliary winding. As you are seeing the another winding below the primary winding. So in that 13 turns is written, I think. So so this is called as the auxiliary winding. So after circuit completion, so the primary winding induces a voltage in the auxiliary winding. So the induced voltage now just goes to the wire and just charges the capacitor. As you can see, the 4.7 microfarad capacitor is there. So what it is doing? So before, the current was also coming from the 4.7 microfarad DC current, but it was not completely charged. That's why it was not in action. So now after getting a completely voltage, it just comes in its action, and after that it's fully charged. Then current passes through transistor, or then fully current passes through the transistor T15008, and uh, and after this the current will also pass to the that another transistor, that is TS8058. So now another specified transistor is used. Then why it is used? So it is used for a small signal. So when we give a small signal, then it will come in action. So here the rectified circuit starts the voltage coming from auxiliary winding and just goes through diode. So here is a diode, as you can see that 1N4148. That auxiliary winding produces a voltage, and that voltage just goes through two paths. One in the capacitor 4.7 microfarad, then another goes to 1N4148 zener diode. Sorry, simple diode. So what it is doing? So now this diode is just converting the AC signal into a DC signal. So because as you can see there in down, that optocoupler is there. That optocoupler works on a DC. So here the auxiliary winding produces the AC signal, that diode just converts it into the DC, and that DC just goes to optocoupler for its working. And as the voltage is induced in primary winding, as the current was passed through the primary winding, and it induces voltage in auxiliary winding. And it is obvious that if a primary winding is given a current, then it will produce a voltage or current in the secondary winding also. So here is a secondary winding that you can see on the another side, that is of having 11 turns. So why the specified turn is given to them? So this is given because when we are producing a 220 volt, when we are converting 220 volt to AC, 220 volt AC to DC, then it is 220 DC. Then this 220 DC just goes to the transformer, and that 220 DC converts to the uh, with the help of the turning. So it just converted into the 5 volt. So now current also induced in the secondary winding, and that AC converts into a DC. And there is a diode also which converts the AC 5 volt into a DC 5 volt. Okay, and uh, and there is a filter capacitor also used, that I already told you before, that the diode does not completely change AC to DC. It just change the AC to pulsating DC, and there is a capacitor that is of 10 volt 4.7 microfarad,
So it is used for just converting that pulsating DC into a completely 5 volt DC. And they are what they are getting a 5 voltage output. And another thing, the question is that if there is a voltage more than 5 volts, support more than 5 volts, then what resistor and LED. So this will glow when the 5 volt is there. And if the voltage is more than 5 volt, then what will happen? Then the current will pass, then current will pass to the 4.2 volt zener diode, and it just pass to the optocoupler. Here the role of optocoupler is there. So what it is doing? So as the Naren already told you that optocoupler is works on a photo light. So what happens when it gets a current that is that zener diode works on a 4.2 volt current. That if the current is more than 5 volt coming from the secondary winding, and it just passes to the zener diode, and then it will pass to the optocoupler. And after getting a current, then octocoupler passes the photo light to the receiver part of it, and then the current starts flowing from there to transistor T S8050. So as I told you, it works already on a small signal. So this after getting a signal, so this transistor just stops the flow of primary current. So the current going to the primary, it just stops the current flowing to the transistor T1, that is of T1 300 15008. It stops or stop it does not stop, it just reduce the current from there. So it just reduce the passing through T13008. So if the current is reduced, it is a low voltage, then it is obvious that a secondary winding will also get a low voltage. So this is the working of a optocoupler, and this is the complete working of the mobile charger. So I hope you just understand this. And the second image which you are seeing, it is the complete image of the charger which is inside the which is inside that box. Okay, so I hope you just get the knowledge, small knowledge about charger, how it works, and in the next workshop, we will just cover as Narendra just cover a software, a PSIM, and गौरव आपकी आवाज थोड़ी सी just कट give के आ the रही है. knowledge about it. I hope that we will just cover another software here. Hello, hello. So is I am audible now? Yeah, audible. Okay, okay. So I was saying that in this workshop we just covered a power simulator, that is a PSIM software. So what to use in this, how to design a circuit in that, and for working of mobile chargers, types of mobile chargers. So I hope you just get a knowledge, a little bit knowledge from this. I'm not saying that you just completely understand how mobile charger work and how the power simulator works. So you just get a little bit knowledge about it. So